آج کے اس دور میں ہم جس خطے میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس قریے میں، جس بستی گاؤں میں ہم نظر دوڑائیں، وہاں برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں، خرابیاں ہی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے۔ حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، تو اب ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہو، یا معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہو، کیسے پاسبل ہے؟ کیا کرنے سے ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا، اسلامی معاشرہ بن جائے گا؟ حضرات، اس کے لیے ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا پہلے مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ معاشرہ بہت ہی گندا معاشرہ بن چکا تھا۔ وہ کون سی برائی نہیں تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، بعثت کے بعد بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے کے بعد بھی، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت تک بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی، ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان ساری برائیوں کا خاتمہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا، اور نبی علیہ السلام نے کما حقہ اپنا فریضہ انجام دیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی علیہ السلام کے اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے اگر ہم اپنا کام کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جو معاشرے کی اصلاح کی، اس کی شروعات توحید سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ان تمام برائیوں پر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی برائی تھی اس روئے زمین پر، وہ شرک تھا۔ دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ کو بھی شریک کر لیتے ہیں، دوسرے معبود کو بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ چیز ناقابل برداشت ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے یہ ٹھان لیا کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا پہچان کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بتایا، لوگوں پر اعلان کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے علی الاعلان کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں تم سب لا الہ الا اللہ کہو۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو، ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی پرستش کی جائے گی، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی ایک اللہ رب العالمین کو تسلیم کیا جائے گا، اسی ایک اللہ رب العالمین سے مانگا جائے گا، اسی ایک اللہ رب العالمین سے فریاد کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا، اور پھر لوگوں کو اس ٹرک پر لایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس ٹرک پر چلتے رہو گے، اگر تم اس پر ایمان رکھو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی، نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، بتایا لوگوں کو کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور دیگر اولیاء کی عبادت نہیں کرو گے، دیگر قبروں میں نہیں جاؤ گے، مزاروں پر نہیں جاؤ گے، تو یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل شرک سے پاک ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم جتنی بھی برائیاں کر رہے ہیں، ان تمام برائیوں میں اگر ہمارے اندر شرک پایا جاتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی برائی ہے اور بہت برا فعل ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کو اپنے اندر سے دور کریں، اگر سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں کوئی چیز پاک ہونی چاہیے، کوئی چیز دور ہونی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ شرک کو سب سے پہلے اپنے اندر سے دور کریں، اپنے معاشرے سے خاتمہ کریں، اپنے گھروں سے دور کریں۔ اب کہیں گے مولانا، ہم کہاں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم کہاں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، بہت سارے شرک ایسے ہیں جسے
बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे शिर्क की बू आती हैं। मैं बताना चाहूँगा उनमें से एक चीज़ तो ये है कि बहुत से मुसलमान भाई भी आज भी मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह को छोड़कर गैरुल्लाह या कब्रों और मज़ारों में और दीगर दरगाहों में जाते हैं। ये अलग बात है कि हम कुछ लोग नहीं जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो लोग जाते हैं। अगर कोई जाते भी हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबों में, अपने पड़ोसियों में, तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए और उनको मना करना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, मुतनब्बह करना चाहिए कि देखिए ये शिर्क है और इससे हमें बाज आना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीज़ों से हमें रोका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तौहीद की दावत दी है। और अगर हम इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अगर किसी दरगाहों पर, किसी मज़ारों पर जाते हैं, वहाँ पर अगर औलाद नहीं होता है और वहाँ से जाकर के औलादें भी मांगते हैं तो ये शिर्क है। इसके अलावा अगर कोई तावीज़ गंडा करता है तो ये भी हदीसों के अंदर आता है कि ये भी शिर्क में शामिल है और ये भी शिर्क ही है। और मेरे भाइयों इसके अलावा खुफिया शिर्क भी पाया जाता है। खुफिया शिर्क में रियाकारी है, दिखावा है। याद रखें हम इबादत करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी शिर्क पाया जाता है। हम और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे होते हैं और जब कोई देख रहा होता है तो हम अपनी नमाज को संवार लेते हैं, हम अपनी नमाज को ठीक ठाक कर लेते हैं, हम अपने क़याम को लंबा कर लेते हैं, हम अपने रुकू को लंबा कर लेते हैं, बड़े ही इत्मीनान के साथ और सुकूनत के साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि कोई हमें देख रहा होता है। याद रहे अब इस नीयत से कि कोई हमें देख रहा है, इस नीयत से अगर आपने क़याम को लंबा कर लिया, अपने रुकू को ठीक कर लिया, अपने सजदे को ठीक कर लिया तो यकीनन ये खुफिया शिर्क है, ये पोशीदा शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बर्दाश्त नहीं है। मेरे भाइयों आप रब की इबादत कर रहे हैं, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि लोग हमें देख रहे हैं कि हम नमाज किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। याद रखिए हदीस के अंदर आता है कि आप इबादत कैसे करें, गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये तसव्वुर कर लें, जहन में ये ख्याल रख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी और की तरफ निगाह दौड़ाएं, किसी और की तरफ झांके कि कोई हमें देख रहा है और इस नीयत से अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में कुछ हुस्न खूबी पैदा करते हैं तो यकीन माने ये शिर्क में शामिल होगा। मेरे भाइयों हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि ये खुफिया शिर्क है, ये पोशीदा शिर्क है और ऐसे शिर्क से भी हमें बाज रहना चाहिए, ऐसे शिर्क से भी हमें बचना चाहिए, वरना फिर रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें हमारी पकड़ हो जाएगी, हम गिरफ्त में आ जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ में आ जाएंगे। याद रखना चाहिए इस हदीस को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म अगर कोई है तो वो शिर्क है। इसलिए शिर्क से हमें इज्तनाब करना चाहिए। हमारे मुआशरे में सबसे पहले हमसे शिर्क दूर होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाए, हमारा मुआशरा पाकीज़ा मुआशरा बन जाए, इस्लामी मुआशरा बन जाए, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर से, अपने मुआशरे से शिर्क को दूर करें, तभी जाकर के हमारा मुआशरा पाकीज़ा मुआशरा बन सकता है, एक इस्लामी मुआशरा बन सकता है। जी हाँ मेरे भाइयों, नंबर 2, कोई भी इबादत हम कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी ज़रूरी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी ज़रूरी है, इताअत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों कि हम नेकी के नाम पर कुछ भी कर लें, नेकी के नाम पर कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें और उस पर महर लगा दें कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, तो यकीन माने ये इबादत हमारे ज़ाय और बर्बाद के अलावा कुछ नहीं हासिल हो सकता है। हमारी ये नेकी ज़ाय और बर्बाद हो जाएगी। अगर हमने ये तसव्वुर कर लिया कि नेकी के नाम से हम कैसे भी इबादत कर लें, कैसे भी चल लें, कैसे भी नेकियां कमा लें, तो ऐसा नहीं चल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई किसी भी इबादत पर अल्लाह का महर होना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महर लगना ज़रूरी है। याद रख लीजिए, बहुत सारे लोग नेकी के नाम पर बहुत कुछ कर लेते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का महर लगा या नहीं, ये नहीं देखते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महर लगी हुई है नहीं लगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नेकी के बारे में क्या कहा है। देखिए, कोई इबादत ऐसी नहीं है जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल ना हो, फेल ना हो या तकरीर ना हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किया है तो बेशक हम कर सकते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर कहा है तो बेशक हम उस अमल को अंजाम दे सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सहाबा कोई अमल कर रहे हैं
اور اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سنا اور اس کے بعد خاموشی کا اظہار کیا، اس کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل سے راضی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان تینوں کو چھوڑ کر کے ایک نئی عبادت کو انجام دینا، نئی طریقے سے کسی نیکی کو حاصل کرنا، یقیناً میرے بھائیوں یہ سنت رسول کے خلاف ہے، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں اطاعت میں صرف یہی نہیں آتی ہے، اطاعت میں یہ بھی آتا ہے کہ رب کیا حکم دے رہا ہوتا ہے اس پر عمل ضروری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا حکم دے رہے ہیں اور کن چیزوں سے منع کر رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اگر کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کا عمل کچھ اور ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم شادی بیاہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارا رویہ، ہمارا عمل، ہمارا طریقہ اگر کچھ اور ہے تو یقین مانے ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کے موقع پر جس طریقے سے شادی ہونی چاہیے، ایمانداری سے بتائیں کیا ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی شادی ہو رہی ہے؟ شرعی طور پر ہماری شادی بیاہ ہو رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہماری شادی تو خلاف سنت رسول، ہماری شادی تو بالکل سنت رسول کے خلاف ہو رہی ہے۔ آج جہاں بھی دیکھیں، جس کے گھر میں بھی جائیں، ہندوانہ رسم آپ کو مل جائیں گے، غیروں کے رسم مل جائیں گے۔ اسلامی رسم کو چھوڑ کر کے غیروں کا رسم اپنانا اور پھر یہ تصور کرنا، یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ مولانا دعا فرما دیں، دعا کر دیں کہ ہمارے شادی میں خیر ہو، ہمارے شادی میں برکت ہو، دولہا دلہن کے لیے برکتوں کی دعا کی جائے، رحمتوں کی دعا کی جائے۔ میرے بھائیو کیا حاصل، کیا حاصل؟ آپ شروع سے دیکھیں گے، ہلدی رسم سے لے کر کے باراتی تک اور ولیمہ تک آپ جتنے بھی اعمال کو ٹٹولیں گے، آپ کو ان میں سے 80 یا 90% آپ کو ملے گا کہ وہ سنت رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ 5-10% ایسے ملیں گے جو صحیح طریقے سے شادی کر رہے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ سنت رسول کے خلاف ہی شادی کر رہے ہیں۔ اس شادی میں بدعت نہ ہو، اس شادی میں غیروں کا رسم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ غیروں کا رسم میرے بھائیوں، ہندوانہ رسم، اور پھر اس میں مولانا کے ذریعے سے اس چیز کو یا ان چیزوں کو حلال کروانا یا دعا کی امید رکھنا، خیر کی امید رکھنا، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، دیکھنا ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے یا نہیں، فرما برداری ہو رہی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر یاد رہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں۔ ان میں سے کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، کچھ مومن لوگ بھی ہوں گے، کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، کچھ مسلحان بھی ہوں گے، کچھ سرداران و ذمہ داران بھی ہوں گے۔ ان لوگوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں تک پہنچ کر کے اپنے اس عمل کو بتائیں جو صحیح طریقے سے شادی ہونی چاہیے، یا کوئی بھی عمل ہو، آپ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر کریں۔ آپ بتائیں کہ یہ عمل غلط ہے، یہ عمل صحیح ہے، شادی ایسی ہونی چاہیے، یہ عمل ایسا ہونا چاہیے، یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اگر اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے، علماء کی ٹیم کھڑے نہیں ہوئی، اور نوجوانان و سرداران و ذمہ داران اگر آگے نہیں بڑھیں تو پھر ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا، اور اس کے بعد تیسری چیز جو صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور جس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہوئی، وہ چیز ہے اتحاد و اتفاق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جوڑا،
लोगों के दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा की। लोगों के दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनथक मेहनतें की, कोशिशें की, रब से दुआएं की, मुनाजात किया, फरियाद किया और फिर बिल आखिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिशन में कामयाब हुए, लोगों को जोड़ने में कामयाब हुए, लोगों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक कायम करने में कामयाब हुए और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी कोशिश कामयाब रही और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ये आयत नाज़िल फरमाई, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ऐ लोगों, तुम लोग अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और गिरोह में मत बटो, जमातों में मत बटो, गिरोह में, जमातों में, फिरकों में मत बटो। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम एक ही कलमा को, हम एक ही कलमा का इकरार करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले आज जितने भी मुसलमान हैं, आप देखेंगे सब अलग अलग फिरकों में, अलग अलग जमातों में, गिरोह में बटे हुए हैं। कोई मालिकी बन बैठे हैं, कोई शाफी बन बैठे हैं, कोई हम्बली बन बैठे हैं, कोई हनफी बन बैठे हैं, कोई क्या तो कोई क्या। मेरे भाइयों, आज मुसलमान एक कलमा का इकरार करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले आज अलग अलग जमातों में, फिरकों में बटे हुए हैं। और तो और मेरे भाइयों, वो तो दूर की बात है कि मुसलमान एक दूसरे के जो अलग अलग जमातों में बटे हुए वो तो अलग ही है। आज अहले हदीस भी अगर है, अहले हदीस भी है, तो अहले हदीस में भी फिरके, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मेरे भाइयों। और इतना ही नहीं, अपने पड़ोसियों में, अपने खानदानों में भी अलग अलग, वो अलग, हम अलग, ये अलग, वो अलग। हाँ, उससे हमारा नहीं जमता है, इससे हमारा नहीं जमता है, ये कबीले वाले उस कबीले वाले से नहीं जमता है, ये नीचे टोले वाले ऊपर टोले वाले से नहीं जमता है, बरेड वाले को फला वाले से नहीं जमता है। ये हमारा इत्तेहाद इत्तफाक है आज के दौर में, ये इत्तेहाद इत्तफाक है। इस मदरसे वाले को उस मदरसे वाले से नहीं बनता, उस मदरसे वाले को इस मदरसे वाले से नहीं बनता, इस मस्जिद वाले को उस मस्जिद वाले से नहीं बनता। यह है इत्तेहाद इत्तफाक जो आज हमने कायम किया कर रखा है। अल्लाह ने जिस इत्तेहाद इत्तफाक की बात की है, आज हमारे अंदर से वो गायब है मेरे भाइयों, वो खत्म हो चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस इत्तेहाद इत्तफाक की बात की थी, या जिस इत्तेहाद इत्तफाक की बात कुरान और हदीस में हो रही है, आज हमारे अंदर वो इत्तेहाद इत्तफाक कायम नहीं है। यही वजह है कि आज मुसलमान काटे जा रहे हैं, आज मुसलमान भगाए जा रहे हैं, आज मुसलमान जलाए जा रहे हैं, आज मुसलमानों को तरह तरह के, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर मुसलमान एक होता, अगर दुनिया के तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर के रहते, तो कोई भी कौम नजर उठाने की ताकत नहीं रखते। और मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की मुट्ठी भर जमात थी, मुट्ठी भर जमात थी। मैं बताना चाहूंगा उस तारीख को कि वो मुट्ठी भर जमात जब किसी गली कोचे में गुजरते, जब किसी सड़क पर किसी रास्ते में गुजरते, दुश्मनाने इस्लाम अपनी नजर झुका लेते, उनके अंदर थरथरी चिक आ जाती, कपकपी सी आ जाती। मेरे भाइयों, ये रौब था सहाबा इकराम का। वो मुट्ठी सी जमात जिस कबीले से गुजरते, वहां के लोग सहम जाते, डर जाते। जी हाँ मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है आज मुसलमानों की इतनी भीड़, इतनी तादाद, अगर किसी 10 गैर मुस्लिम के सामने खड़े हो जाए तो भी आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है कोई फर्क। वजह क्या है? वजह यह है कि आज हमारे अंदर कोई इत्तेहाद इत्तफाक नहीं रहा। आज लोगों ने हमारी कमजोरी को देख लिया है कि वो आपस में लड़ बैठे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। आज तो भाई भाई अपना सरकलम करने को तैयार हैं। मुसलमान तो दूर की बात है, आज माँ बेटे में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़े, बहन बहन में झगड़े। मेरे भाइयों, और झगड़े भी तो ऐसे झगड़े मेरे भाइयों के उनका सर ही कलम कर दे, उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। और फिर बरसों तक बातचीत बंद, बरसों तक कलाम बंद, बरसों तक लेन देन बंद, बरसों तक सलाम कलाम बंद, सारी चीजें बंद। कई सुना है मैंने, 2 कबीलों में, 2 खानदान में या आपस में खानदान में झगड़े हो गए। हमारी तो 5 साल से बात नहीं हो रही है, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आज इस तरीके से हम बटे हुए मेरे भाई। याद रहिए, हम खानदान वाले अगर लड़ेंगे तो दूसरों की नजर हमारे खानदान पर होगी। हम रिश्तेदार अगर लड़ेंगे आपस में, दूसरों की नजर हमारे रिश्तेदारों पर होगी। हम मुसलमान अगर आपस में लड़ेंगे, दूसरे कौम हमारे ऊपर हावी होंगे और हमारे ऊपर उनकी नजर होगी। और ये हो रहा है।
ये हो रहा है, हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया है, अगर तुम फिरकों में बटोगे, अगर तुम गिरोह में बटोगे, अगर तुम जमातों में बटोगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा, तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। अफसोस मेरे भाइयों, आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हम टीवी अखबारात में, मोबाइल में, न्यूज में आज हम दिन और रात पढ़ रहे हैं। हमें एहसास होना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या खताएं हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि माशरे की इस्लाह हो जाए, हमारा मुआशरा सही मुआशरा बन जाए, हमारा मुआशरा पाकीज़ा मुआशरा बन जाए, तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक कायम करें, हम मुत्तहिद हो जाए, हम एक हो जाए। हम क्यों कर आपस में लड़ें, हम मुसलमान क्यों कर अलग अलग जमातों में, गिरोह में बटें, हम रिश्तेदार, हम खानदान क्यों कर अलग अलग इसमें बटें और अलग अलग हो जाएं। नहीं मेरे भाइयों, मदारिस चल रहे हैं, मसाजिद चल रहे हैं, उसमें भी बुग्स, उसमें भी हसद, उसमें भी कीने। क्यों मेरे भाइयों? वो भी इस्लाम के किले हैं, ये भी इस्लाम के किले हैं, ये भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। मेरे भाइयों, हम अपने ज़हन दिमाग में ये ख्याल पैदा करें, हम अपने दिलों को इस तरीके से पाक साफ रखें, न कि तासुब की बुनियाद पर हम जगह जगह पर ये बोलते फिरें कि वो ये काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, उनसे ये खताएं हो रही है, इनसे ये गलती हो रही है, इनके अंदर ये खामियां है, उनके अंदर वो खामियां है। नहीं मेरे भाइयों, अगर हम सही हैं, अगर हम हक पर हैं, अगर हमें उनको आईना दिखाना है, तो हमें उस दिन की इस्लाह करें, जा करके बताएं आपसे ये गलती हो रही है, आपसे ये खताएं हो रही है, आपके मस्जिद में ऐसा है, आपके मदरसे में ऐसा है, आपके खानदान में ऐसा है, आपके अंदर ऐसा है। मेरे भाइयों, हम आईना दिखाएं, हम उनको समझाएं, हम उनको बताएं इस्लाम ने ये हक दिया है। अगर हम सही नीयत से, सही अकीदे से अगर हम लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, तो हमारा माशरा पाकीज़ा माशरा बन जाएगा और लोग सुधरेंगे, लोग अपनी अपनी इस्लाह करेंगे। ना कि बुग़्ज़ एनात की बुनियाद पर अगर हम बोलते फिरेंगे, कहते फिरेंगे और सोचेंगे कि हमारी माशरे की इस्लाह हो जाएगी, उस मदरसे की भला हो जाएगी, उस मस्जिद की भला हो जाएगी, उस कौम की भला हो जाएगी, उस खानदान की भला हो जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। बहरहाल चौथी चीज़ जिससे हमारा माशरा इस्लामी माशरा और पाकीज़ा माशरा बन सकता है, वो क्या है? वो है एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का हमदर्द बनना, एक दूसरे के गमखार बनना। जी हाँ मेरे भाई, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, उनके साथ शफकत से पेश आएंगे, उनका हमदर्द बनेंगे, अगर वो मुसीबत में है, परेशानी में है, अगर उनके हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो यकीनन इससे हमारा माशरा इस्लामी माशरा और पाकीज़ा माशरा बन सकता है। कैसे मेरे भाइयों? आज शादी ब्याह में लिफाफे में देखेंगे 500 का नोट जा रहा है, 300 का नोट जा रहा है। एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, एक भाई बीमार है, कई महीनों से बीमार है। बीमारी में आप लोगों को मालूम होना चाहिए खर्च बहुत होते हैं। यकीन माने शादी के लिए हफ्ते भर से तैयारी करने का उनको मौका मिल जाता है कि फला के घर में शादी है और फला चीज़ हमें करना है, लेकिन इयादत मुसलमान की, अपने भाई की, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की, अपने ख़ानदान की तौफीक नहीं होती है। ये तौफीक नहीं होती है। अगर कभी तौफीक मिल भी गई तो एक आध सेब लेकर के हाजिर हो जाते हैं, एक आध जूस लेकर के हाजिर हो जाते हैं, सोचते हैं हमने इयादत कर ली, जबकि वो पैसे वाले हैं, वो 200-400 500 1000 थमा करके भी आ सकते हैं। सोचिए हमारे माशरे में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए, यहां पर जुमा में तकरीबन 100 आदमी हैं, 100 आदमी की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ 20 आदमी हाजिर हो जाए उसकी इयादत के लिए, 500 का नोट अगर लेकर के पहुंच जाए, मैं समझूंगा कि उसका इलाज हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा, उनकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई बढ़ जाएगी, उनकी खुशियां दोबाला हो जाएगी, उनकी जबान से दुआएं निकलेगी, वो रब्बुल आलमीन से आपके हक में दुआएं करेंगे। आपके जरिए से अगर कोई इंसान, किसी इंसान में अगर कोई इंसान अगर खुशी महसूस करते हैं, तो यकीन माने उससे बढ़कर के आप कुछ चीजें हासिल नहीं कर सकते। हम अगर किसी को मदद कर रहे हैं और उसी को खुशी मिल रही है, तो उस खुशी के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप जाएंगे 500 का नोट, 1000 का नोट, अगर वहां पर 1000 रुपये अगर उनको दे देंगे, इस बहाने से
कि आप बीमार हैं, आप रख लीजिए, आपकी जरूरत है, आपका काम आएगा, तो मेरे भाइयों उनके जबान से दुआ ही निकलेगी, आंसू ही निकलेंगे, खुशी के आंसू निकलेंगे, खुशी के आंसू निकलेंगे। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। आज अपने गांव में कितने ऐसे बेवाएं हैं, आज जुमा का दिन है, गोश्त हम खाएंगे जरूर, हमारे घर में बना होगा, लेकिन हम और आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि किसी के घर में नहीं भी बना होगा, किसी ऐसे बेवा के घर में गोश्त नहीं पका होगा। हम 1 किलो की जगह 2 किलो लेते हैं गोश्त, 2 की जगह 4 किलो लेते हैं, लेकिन वहां हमारी जहन या हमारा दिमाग नहीं पहुंचता है कि 1 पाव या आधा किलो ही सही हम उस घर तक पहुंचा दे जिस घर में गोश्त नहीं बनता होगा, या उस घर तक पहुंचा दे जो मफलूकुल हाल हैं, जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और यतीम हैं या बेवा हैं, उनके घर तक हम नहीं पहुंचाएंगे। या ना वहां तक दिमाग जाता है, ना हम वो कोशिश कभी करते हैं। जबकि मेरे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई यतीमों को, बेवाओं को ढूंढ करके उनकी जरूरत को अगर कोई पूरी करते हैं, उनकी जरूरत को अगर कोई पूरी करते हैं, तो उससे मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलता है और उसको दीगर क़यामुल लैल का सवाब मिलता है। एक इंसान रात भर पूरी इबादत करे, उससे बढ़ करके उनको सवाब मिलता है। जो शख्स यतीमों को, बेवाओं की जरूरतों को ढूंढ करके तलाश करके उनकी जरूरियात को पूरी करते हैं, सुभान अल्लाह, हमारी जहन वहां तक नहीं जाती है, हम इस तरह नहीं सोच सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम मुआशरे के हमदर्द बनेंगे, एक दूसरे के खैरखा बनेंगे, किसी भी मुसीबत में उनका काम आएंगे, किसी भी परेशानी में उनका काम आएंगे, मेरे भाइयों उनसे और हमसे उनकी मोहब्बत बढ़ेगी। या एक खानदान वाले दूसरे खानदान वाले का हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। एक पड़ोसी वाले दूसरे पड़ोसी की मदद करेंगे, उससे क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, और इससे किसी भी काम को अंजाम देने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। कोई भी काम, नेकी का काम कोई भी हो, उससे आसानी हो जाएगी। आप देख लीजिए, बरहेट के अंदर काबिल मुबारकबाद है बरहेट वाले। मैं तो समझूंगा, मैं अपनी नजर में यहां जितना चंदा होता है, जितना लोग निकाल करके देते हैं, कहीं और नहीं देते हैं, कहीं और नहीं देते हैं। अरे महीने में चंदे होते हैं और लाखों रुपया वसूल हो जाते हैं। ये क्या है? मेल मोहब्बत है, एक दूसरे का ताउन है, मदद है, एक दूसरे के दरमियान उल्फत व मोहब्बत है, कोई कीना नहीं, कोई हसद नहीं, कुछ भी नहीं। आया कोई ईदगाह का काम करा रहे, कोई मस्जिद में मार्बल लगा रहे, कोई टाइल्स लगा रहे, कोई मस्जिद कायम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे बढ़ चढ़ करके देते हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फायदा इतना कि आज हर मस्जिद में मार्बल लगा हुआ है और हर मस्जिद की कामयाबी है। ये क्या है? आपस में मेल मोहब्बत की वजह से हो रही है ये चीजें। वरना अगर हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर ये चीजें होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। ऐसा बाज गांव में मस्जिद में कुछ चीजें लगानी हो तो पूरा गांव मिलकर के भी वो चीजें नहीं कर सकते। ऐसे भी गांव हैं, हमें क्या जरूरत है? अगर कोई परेशानी में है, हमें क्या जरूरत है? वो है तो वो है, देख करके गुजर जाते हैं, उनकी परेशानी को महसूस नहीं करते हैं। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों सुनो, तुम लोग एक जिस्म के मानिंद हो, एक जिस्म की तरह हो। चाहे तुम्हारे करिए में हो, तुम्हारी बस्ती में हो, तुम्हारे गांव में हो, तुम्हारे मोहल्ले में हो, तुम्हारे शहर में हो या दीगर शहरों में हो, दीगर मकामात में हो, दीगर शहरों में हो, वहां के कोई भी मुसलमान अगर परेशान है, अगर किसी मुसीबत में है, तो तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम्हें तकलीफ होना चाहिए कि हमारा भाई तकलीफ में है, मुसीबत में है, परेशानी में है। तुम्हें दर्द होना चाहिए, तुम्हारे दिलों से दुआएं निकलनी चाहिए, उनके लिए ताउन करने का जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम उसके अंदर उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे तो उनकी परेशानी दूर हो जाएंगी, हम क्या कुछ कर सकते हैं कि उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं, फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जब मुसलमान परेशान हो रहे हैं और अब भी परेशान हो रहे हैं, बहुत से मुसलमान भाई परेशान हैं, लेकिन बहुत से मुसलमान भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फलस्तीन में, गजा में मुसलमान परेशान है, कितने
सारे मुसलमानों की आंखों से आंसू बह जाते हैं, वो कोशिश करते हैं, मुतहर्रिक में आ जाते हैं कि हम उनके लिए कैसे पैसे भेजें, हम उनके लिए खाने के लिए कैसी चीजें भेजें। मेरे भाइयों, यही जज्बा हर मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, हर भाई के अंदर होना चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक जिस्म के मानिंद करार दिया है। नबी ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब कोई भाई किसी भी तकलीफ में हो तो उस तकलीफ को हमें भी महसूस होना चाहिए, महसूस करना चाहिए, उस तकलीफ को हमें भी महसूस करना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, कुछ मुसलमान भाई हैं मेरे भाइयों कि उनकी तकलीफ को नजरअंदाज करते हैं, उनकी परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं और फिर यूं ही चलते रहते हैं, सोचते हैं अपना बने तो बस काफी है और दीगर का हमें कोई लेना देना नहीं है। वो किस आलम में है, किस हालत में, हमें फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारा माशरा इस्लामी माशरा बन जाए, पाकीज़ा माशरा बन जाए, तो एक दूसरे का हमदर्द बने, एक दूसरे का खैर खा बने, एक दूसरे का ताउन करने की कोशिश करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के काम में तुम हमेशा ताउन करो, हमेशा मदद करो। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, अगर गुनाह का काम है, बुराई का काम है, तो फिर ऐसे कामों से आप अपने हाथ को ताउन से रोक लें, यानी कि ताउन ऐसे कामों में न करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन तो हमारे माशरे को इस्लामी माशरा बना, पाकीज़ा माशरा बना। अल्लाह आलमीन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खैर के कामों की तरफ अल्लाह तो हमें गामज़न फरमा। अल्लाह नेकी की तरफ बुलाने की तो हमें तौफीक अता फरमा, गुनाहों से परहेज़ करने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, बदकार हैं, गुनाह हम करते हैं, माफ़ तू करता है। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, हालत इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब हमारा खात्मा फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा, जब हमारी मौत हो हमारी ज़बान पर आखिरी कलाम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।